नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मॉक टेस्ट 18 यूजीसी नेट जेआरएफ और स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एनवायरमेंटल साइंसेस पेपर 2 के लिए। दिस इज मॉक टेस्ट 18 फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस पेपर 2 फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ एंड स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। So here, question 1. CFCs are responsible for ozone depletion. How do they contribute to global warming? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं, पर वो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? ऑप्शन ए, रिड्यूसिंग द एल्बिडो ऑफ द अर्थ सरफेस। ऑप्शन बी, अब्सॉर्बिंग सोलर रेडिएशन। एल्बिडो वो होता है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज अर्थ रिफ्लेक्ट कर देती है। सो द परसेंटेज ऑफ incident radiation upon the earth's surface which is reflected back into the space is called albedo. So do CFCs reduce the albedo of the earth's surface? B, they absorb solar radiation. C, they block ultraviolet B radiation on earth. Or D, they absorb terrestrial radiation. So CFCs, they absorb terrestrial radiation. That means the part of radiation, incident solar radiation, that falls on the earth, that is absorbed by the earth, and then earth re-radiates radiation. That is terrestrial radiation. Radiation emitted by the Earth's surface. Land is called terrestrial radiation. And CFCs absorbs those terrestrial radiation. तो CFC जो होते हैं, क्योंकि जब धरती गर्म होती है और वापस हीट एमिट करती है, तो जब धरती वापस हीट एमिट करती है उसको CFCs अब्सॉर्ब कर लेते हैं और इसीलिए वो ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो आंसर होगा डी। क्वेश्चन 2, assertion all cloud processes have implications for climate change. सही है, it's correct. All cloud processes do have implications for climate change. Reason, clouds strongly affect the flux of both shortwave and infrared light through atmosphere. और इसका कारण कि जो बादल हैं वो flux of both shortwave, flux वो होता है flowing out, तो shortwave radiation वो होता है जो visible light से कम wavelength होता है, infrared light वो होता है जो visible light से ज्यादा wavelength होता है। तो वो दोनों तरह के रेडिएशन को अफेक्ट करते हैं बादल, और ये बात सच है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। ठीक है, क्वेश्चन 3, व्हाट डज द वियना कन्वेंशन रिलेट टू? वियना कन्वेंशन किस चीज से रिलेट करता है? इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, या प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, या बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एनवायरनमेंट। तो वियना कन्वेंशन जो है 1985 में हुआ था और ये ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से संबंधित है। वियना कन्वेंशन हैपेंड इन द ईयर 1985 एंड इट इज रिलेटेड टू ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, क्वेश्चन 4, सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ओजोन डिप्लीशन ओवर अंटार्कटिका। गलत स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। फॉल्स स्टेटमेंट, ए, सर्कमपोलर वॉर्टेक्स acts as a reaction chamber. That is correct. Polar stratospheric clouds PSCs are formed within the vortex. This is also correct. There is very low temperature inside the vortex. This is also correct because during the winter the temperature in the polar vortex drops below 195 Kelvin and polar stratospheric clouds form. Chemical reactions on the surfaces of these cloud particles release chlorine that originated from CFCs into forms that can destroy ozone layer. So basically जो circumpolar vortex है वो फॉर्म होता है विंटर में और उसमें पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और उस क्लाउड के सरफेस पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रिएक्शन का डिग्रेडेशन होता है और फ्री क्लोरीन रिलीज होता है और वो फ्री क्लोरीन फिर ओजोन को डिप्लीट करता है। ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों सही है, बोथ ए, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। बट क्वेश्चन डी, द हेटेरोजेनस रिएक्शन इज दिस and it leads to the formation of nitric acid. This is false because there is no nitric acid that is formed in the polar vortex or on the poles. So no, the D is incorrect, totally incorrect. Okay, what is the typical atmospheric lifespan of CFCs? So CFCs do not have a very long lifespan compared to other gases. So their lifespan is anywhere between 50 to 102 years. Everything else is not correct. 50 to 102 years. Okay, answer A. CFCs का लाइफ स्पैन बाकी गैसेस के मुकाबले कुछ कम ही होता है, तो 50 से 100 साल, तो ये होगा 50 to 102, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, याद कर लीजिएगा, वो मस्ट मेमोराइज दैट। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP ऑफ N2O ओवर अ टाइमलाइन ऑफ 100 years इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड। तो N2O का जो ग्लोबल वार्मिंग है पोटेंशियल है वो कितना होता है?
तो मेरे सोर्सेस के मुताबिक वो होता है 273 टाइम्स दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज 1 और उसके मुकाबले वो 273 गुना ज्यादा होता है N2O का। यहाँ 273 ऑप्शन ही नहीं है, 296 ऑप्शन है, इसलिए आप 296 लिखेंगे। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और उसके बाद सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग, सबसे कम, द मिनिमल ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज CO2 which is 1, and in comparison to CO2 the global warming potential of methane or CH4 is between 27 to 30 times, and for N2O it is at least 273 times or 296 times, which is mentioned here. Okay, and then comes CFCs and HFCs which have a global warming potential of 1000 times or more. So this is it. तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का ऐसे सबसे कम CO2, फिर CH4, फिर N2O और सबसे ज्यादा CFC और HFC का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। ठीक है। क्वेश्चन 7, द ग्रीन हाउस गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड स्ट्रांगली अब्सॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। तो नाइट्रस ऑक्साइड किस रेंज में वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है? और उसका सही उत्तर है बी, 7.8 माइक्रोमीटर टू 8.6 माइक्रोमीटर। ठीक है। Question 8. The wavelengths that are most important in the context of ozone depletion are. ओजोन डिप्लीशन के संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वेवलेंथ की रेंज कौन सी होती है? तो वो है ऑप्शन ए, 280 to 320 नैनोमीटर। ठीक है, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ यही रेंज है और ओजोन का जो वेवलेंथ रेंज है वो अल्ट्रावायलेट होता है। तो दिस इज द वेवलेंथ रेंज 280 to 320 नैनोमीटर। ओजोन का संबंध अल्ट्रावायलेट लाइट से है, तो सबसे कम वेवलेंथ, अल्ट्रावायलेट की वेवलेंथ वैसे भी कम होती है, इसलिए मिनिमम वेवलेंथ यही है। दिस इज द करेक्ट आंसर ए। द शेयर ऑफ इंडिया इन टोटल एनुअल वर्ल्ड एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज। तो जो टोटल एनुअल वर्ल्ड एमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसमें भारत का प्रतिशत, भारत का हिस्सा कितना है? दिस इज इट, 5 से 7%। ठीक है। क्वेश्चन 10, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन इज। ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन क्या होता है? एक फ्रेऑन 2 गैस है, या एक स्प्रे कैन प्रोपेलेंट है, या फिर एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मेथेन, that means chloro is also there, fluoro is also there. So chlorofluoro and methane, that means carbon is also there. So it's certainly a chlorofluorocarbon. Okay. Then a spray can propellant. It is a gas that is put into a spray can in pressurized form, and when released, it acts as it's a spray can propellant. So एक गैस होती है ये, इसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी और मेथेन भी। तो क्लियरली ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और ये प्रेशराइज्ड फॉर्म में बोतल में बंद की जाती है। जब बोतल में बंद रहती है तो लिक्विड होती है, पर जब बोतल से रिलीज की जाती है तो वो एक गैस हो जाती है, जैसा कि अक्सर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ होता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा, बी भी सही है और सी भी सही है, तो आंसर होगा बी। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। क्वेश्चन 11, which of the following is not one of the 12 principles of green chemistry? ग्रीन केमिस्ट्री, हरित रसायन शास्त्र में 12 प्रिंसिपल्स हैं, तो इनमें से कौन है जो उस शास्त्र का हिस्सा नहीं है? ए, मिनिमाइज और एलिमिनेट द नीड फॉर वेस्ट क्लीनअप बाय एम्फसाइजिंग वेस्ट मिनिमाइजेशन। दिस इज ट्रू। वेस्ट क्लीनअप और वेस्ट मिनिमाइजेशन की बात कही गई है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। minimize energy consumption, this is also true. Maximize the use of products from green plants. So eco-friendly doesn't necessarily mean the maximization of use of products from green plants. Okay, so this seems like an iffy statement, this might not be true. Then B, avoid the use and generation of hazardous substances that may harm humans or the environment. So this is also true. तो हरित रसायन शास्त्र में हमेशा क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, लिमिटेड वेस्ट जनरेशन, वेस्ट मिनिमाइजेशन और हैजर्ड मिटिगेशन, इन सब चीजों की बात कही गई है, और इको फ्रेंडली की बात कही गई है। और ज्यादा से ज्यादा ग्रीन प्लांट्स का इस्तेमाल जरूरी नहीं है कि वो इको फ्रेंडली। अगर सब कुछ ग्रीन प्लांट्स का इस्तेमाल करेंगे तो सारे प्लांट हम इस्तेमाल ही कर जाएंगे, तो फिर तो वो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। तो ये जो सी स्टेटमेंट है ना, मैक्सिमाइज द यूज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, दिस इज नॉट मैक्सिमाइज द यूज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, दैट्स ट्रू, बट यूज ऑफ ग्रीन प्लांट्स दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज दैट विल लीड टू डिफॉरेस्टेशन. So answer C is correct. It is the false statement, not related to green principles of green chemistry. Okay. यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स दिए गए हैं: प्रिवेंशन, एटम इकोनॉमी, लेस हैजर्डस केमिकल सिंथेसिस,
designing safer chemicals, safer solvents and auxiliaries, design for energy efficiency, use of renewable feedstock, reduce derivatives, catalysis, and design for degradation, real-time analysis of pollution prevention, inherently safer chemistry for accident prevention. So these are the principles of green chemistry. Okay. Okay, match the following. So we have to match the compound with their lifespan in the atmosphere. ठीक है. तो सबसे कम जो लाइफ स्पैन होती है वो किसकी होती है और सबसे ज्यादा किसकी होती है, यहाँ पे यही पता करना है. ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, यू हैव टू मेमोराइज इट. सो हियर द करेक्ट आंसर इज 12 का ए. सो इन दिस ऑप्शन ए हैज टू बी मैच्ड विद 2. सो CF4 हैज टू बी मैच्ड विद 2. सो मैक्सिमम लाइफ स्पैन इज ऑफ CF4, फ्लोरोकार्बन. इट्स नॉट अ क्लोरोकार्बन, देयर इज नो क्लोरीन. कार्बन है और फ्लोरीन है. 50,000 years, 50,000 ईयर्स है. और CF2 Cl2 इसकी जो लाइफ स्पैन है B का 4 है, 102 ईयर्स. ठीक है. फ्लोरोफ्लोरोकार्बन का एटमॉस्फेरिक लाइफ स्पैन 102 ईयर्स है. फ्लोरोफ्लोरोकार्बन, वी ऑल नो दिस. देन CFCl3, C का लाइफ स्पैन होगा 150 ईयर्स. CFCl3 का 50 ईयर्स, CF2 Cl2 का 102 ईयर्स, एंड CF3Br ब्रोमीन का ब्रोमोफ्लोरोकार्बन का जो लाइफ स्पैन है B का 3 है, 65 ईयर्स. तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा. इस क्वेश्चन को आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जो मैं कहूँ उसको आंख मूंद के मान मत लीजिए. हमेशा फैक्ट्स को वेरीफाई कीजिए जहां भी आपको डाउट हो. प्लीज वेरीफाई फैक्ट्स व्हेन यू हैव अ डाउट. In case of the Himalaya, the best way to confirm whether there is a climate change or not is to A. Monitor tree line, yes. Monitor migration of glaciers, yes. Study alteration in species composition. So all of these ways are good ways to know if there is a climate change happening in Himalayas and all. Tree line का को monitor करना कि पेड़ कहाँ तक थे और अब कहाँ तक हैं, या माइग्रेशन ऑफ ग्लेशियर्स कितने थे पहले और अब कैसे घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं. स्टडी ऑफ ऑल्टरेशन इन स्पीशीज कॉम्पोजिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो स्पीशीज उस हिसाब से उस हिसाब से माइग्रेट करती हैं. तो अगर पहले ठंड का जो एरिया है वो ऊंचा था तो स्पीशीज वहां तक थी, अब ठंड का एरिया नीचे वेरी कर गया तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन भी उस एरिया में वेरी करेंगी टेम्परेचर के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से. तो ये तीनों ही तरीके हैं ये मॉनिटर करने के कि हिमालयस में क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं. ट्री लाइन, माइग्रेशन ऑफ ग्लेशियर्स, and alteration in species composition, they all happen because of temperature shifts and rainfall shifts. So all these three are important ways and good ways to confirm whether there is a climate change happening or not. So the answer should be D, all of these. Okay. Question 14. Landslide in the Himalayas are a consequence of. Himalayas में landslide क्यों आते हैं? Okay. तो क्या रोड कटिंग की वजह से आते हैं, क्या सेस्मिक एक्टिविटी की वजह से आते हैं, क्या डिफॉरेस्टेशन से या अर्बनाइजेशन की वजह से? सबसे सभी कारण हैं एक्चुअली लैंडस्लाइड्स के, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो डिफॉरेस्टेशन होता है. पेड़ जब कट जाते हैं तो जो पेड़ को होल्ड करने के लिए पेड़ के रूट्स मिट्टी को होल्ड करते हैं पहाड़ पे, और कितना भी एक्टिविटी हो, रोड कटिंग हो और अर्बनाइजेशन, अगर पेड़ है वहां पे तो उन्होंने पहाड़ पे मिट्टी को और पत्थरों को होल्ड किया हुआ है तो लैंडस्लाइड नहीं होता है. लेकिन जब पेड़ कट जाते हैं तो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो लैंडस्लाइड इमीडिएट होता है. So trees hold the rocks and soil firmly in place on the steep slope of a hill or a mountain. But when there are no trees, any slight disturbance due to any of these factors will cause a landslide. So the main reason for the increased frequency of landslide in the Himalayas is deforestation. So here the answer will be C, deforestation. Question 15. The Green Climate Fund recently set up to help poor countries adapt to climate impact, envisages financial support to the extent. So ये interesting question है कि एक ग्रीन क्लाइमेट फंड सेटअप किया गया है और गरीब देशों के लिए कि वो क्लाइमेट चेंज का जो भी इम्पैक्ट हो रहा है उससे अडेप्ट कैसे करें. तो उस फंड की कीमत कितनी है? $100 billion, $30 billion, $10 billion या $3 billion? The answer is $100 billion. ओके, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा किसी और तरह से पूछ सकते हैं. Stratospheric ozone absorbs ultraviolet radiation principally in the wavelength range of. तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है.
हम सब ये बात जानते हैं, किस वेवलेंथ रेंज में? तो इसका सही उत्तर है बी, 230 to 320 नैनोमीटर की रेंज में, ये सही उत्तर है। दिस इज द वेवलेंथ रेंज फॉर अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, ठीक है। Which of the following has the lowest ozone depletion potential? Ozone depletion potential होता है the ability of any molecule to deplete ozone, जो कि हाईएस्ट होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, हम सब जानते हैं। बट उस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में से भी अलग अलग तरह के क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, किसी का ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी का थोड़ा कम हो सकता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका कि ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल सबसे कम है? और आंसर होगा HCFC, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन। क्यों? क्योंकि इसमें कोई HCFC 1, 2, 3 ये आंसर होगा। इसमें कोई फ्री क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं है, तो इसमें जो ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल है सबसे कम होगा, ठीक है। क्वेश्चन 18, और मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपको लगता है ये मैंने गलत बताया तो आप अपने इस फैक्ट को अपनी तरफ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस में कभी कभी गलती की चांसेस होते हैं। क्वेश्चन 18, assertion upper atmosphere shields life on earth, ठीक है। रीजन आर, ultraviolet radiation are absorbed in the upper atmosphere. Okay, both A and R are correct and R explains A. Both A and R are correct but R doesn't explain A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो देखिए, upper atmosphere shields life on earth, this is true. Ultraviolet radiations are absorbed in the upper atmosphere, this is not entirely true. Ultraviolet radiations are absorbed in the upper atmosphere, but I would in the stratosphere. But this is not the only reason why upper atmosphere shields the life on Earth, because upper atmosphere also has an ionosphere, and which is part of the thermosphere, and that ionosphere it repels the ions and charged particles coming from the sun, and because of that repulsion of charged particles coming from the sun, the life on Earth is preserved. Okay. तो अपर एटमॉस्फेयर में आयनोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर का पार्ट है वो, और जो सन से जो चार्ज पार्टिकल्स आते हैं ना वो उस आयनोस्फेयर से की वजह से रिपेल हो जाते हैं, और जब वो रिपेल हो जाते हैं तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो प्रिजर्व हो जाता है और अर्थ प्रिजर्व हो जाती है, क्योंकि अगर वो आयन जो सन से आते हैं अर्थ तक वो रिपेल नहीं होंगे तो अर्थ का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो चार्ज होके उड़ जाएगा और अर्थ पे सारी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ स्ट्रेटोस्फेयर ही कारण नहीं है कि क्योंकि ओजोन कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेता है और लाइफ अर्थ पे प्रोटेक्टेड रहती है। आयनोस्फेयर भी एक बड़ा रीजन है, क्योंकि आयंस चार्ज होते हैं और अर्थ और जो सन से चार्ज आयंस होते हैं वो रिपेल कर देते हैं उसको, तो सन से जो हार्मफुल रेडिएशन है वो रिपेल हो जाती है और अर्थ पे लाइफ प्रिजर्व होती है। तो ए एंड आर दोनों करेक्ट हैं, बट आर डजंट एक्सप्लेन ए वेरी वेल, ठीक है। आर भी सही है, ए भी सही है, लेकिन आर ठीक तरह से ए को एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक। बी आंसर। Question 19. According to Indian State Forest Report, ISFR 2017 of MOEF and CC. MOEF and CC stands for Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The increase in forest cover of the country with reference to the year 2015 is, सन 2015 के मुकाबले इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना, भारत का फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ा है? तो सबसे छोटा फिगर यहाँ पे 1% है और आंसर भी यही सही है, डी 1% इज द करेक्ट आंसर, इतना ही बढ़ा है। The International Solar Alliance aims to mobilize financial investments over, International Solar Alliance एक अलायंस है और वो सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करते हैं और वो कितना फाइनेंशियल रिसोर्स को मोबिलाइज करने की उम्मीद रखते हैं सन 2030 तक? तो द आंसर इज 1000 बिलियन US डॉलर, दैट इज 1 ट्रिलियन। इतनी रकम वो सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो आंसर इज ए, $1000 billion or 1 trillion. Okay. Hope this test was useful for you. If you didn't understand anything or if you think something is not, something is conflicting, please do let me know in the comments below. And if you're new to my channel, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. See you in my next video.